Hello, students of Pune College, SYBCom, students who've registered in SYBCom for the academic year 2025-26. It's time to fill the exam form for the semester 4. I will quickly take you through the step-by-step guide of how to fill the exam form. It's very simple. A few things you need to keep in mind. Firstly, when you want to fill the exam form, you just go to SPPU exam, you type in the Google search, you will get this, the first website, or you can directly click on this examform.unipune.ac.in. I will put this link in my description below. You can directly click on the video, the link below, and access this website. Once you go on this website, you will have to go to student login. And once you go to login, you will enter your mobile number or email ID, whatever you've chosen, and enter the password, enter the CAPTCHA, and you will go to this page. This is your page where your details will be visible. Your name, your PRN number, your eligibility number, your mother's name, everything will be available over here. All right. Here you will click on this part, exam form. Once you click on exam form, it will take you to this page. Click proceed. And this is where you will come. Yahan pe you will need to click on create new application. Once you click on create new application, it will take you to this page where your personal details, whatever you filled so far, your name, your parents' name, your address, college name, caste, category, everything will be pre-filled. आपको यहाँ कुछ नहीं भरना है, सब कुछ पहले से भरा हुआ है क्योंकि आपने सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिया है, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम दिया है. So you don't need to fill anything over here. Just click on next. When you click on next, these are the subjects. Now this is the important part. यहाँ पे आपका, अगर आप ये जो स्टूडेंट है, this particular student is of cost and management accounting. If you are a student of banking, यहाँ पे आपको बैंकिंग लिख के आएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस लिख के आएगा. अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो तो मार्केटिंग लिख के आएगा. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट हो तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिख के आएगा. सो वट एवर इट इज, ये ऑटोमेटिक प्री फिल्ड आएगा. आपको यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ये सब कुछ भर के आएगा. सब लोगों को सीसी में बैकलॉग लगा है बिकॉज सीसी का एग्जाम लास्ट सेमेस्टर में नहीं हुआ था. तो सेमेस्टर 3 का सीसी बाय डिफॉल्ट आएगा. सेमेस्टर 4 का सीसी आपको सेलेक्ट करना है. कौन सा सीसी रहेगा वो हम देखेंगे, बट बिफोर दैट फर्स्ट स्टेप, दिस इज प्री फिल्ड. आपको यहाँ कुछ नहीं करना है. इन द फर्स्ट दिस पार्ट कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे. इफ यू आर फिलिंग द सेमेस्टर 4 एग्जाम फॉर्म, आपको इसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका, जो एईसी है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है, उसमें से या तो आपका हिंदी है या तो उर्दू है. एट पूना कॉलेज वी आर ऑफरिंग ओनली दीज टू. इफ इट इज हिंदी, क्लिक ऑन दिस बॉक्स. इफ इट इज उर्दू, क्लिक ऑन दिस बॉक्स. द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, व्हाटएवर हिंदी और उर्दू जो भी आप सिलेक्ट करोगे, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद में आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे. यहां पे आपको सीसी का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. 95% ऑफ द स्टूडेंट्स will be selecting this last option, that is integrated personality development program. जिसका सीसी का बुकलेट आपके क्लास टीचर्स ने आपके ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है, वो आपको फिल करके सबमिट करना है. तो यहाँ पे एग्जाम के लिए आप यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है सीसी वाला, आप इंटीग्रेटेड पर्सनल डेवलपमेंट सेलेक्ट करोगे. अनलेस अगर आप स्टेट लेवल इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे. अगर आप एनसीसी में, आपके पास, आप एनसीसी में हो और एनसीसी आपने किया है बराबर से, या एनएसएस में हो और आपने एनएसएस कैंप वगैरह किया है बराबर से, डिपेंडिंग ऑन दिस these 3 options, either NCC, NSS, sports, or integrated personality development program. Maximum students will be selecting integrated personality development program. All right, यहाँ पे आप चेक मार्क करोगे. टिक मार्क करने के बाद आपको नेक्स्ट ये आएगा ओई सब्जेक्ट. ओई कौन सा सेलेक्ट करना है? अभी आपने ऑलरेडी ओई, आपका स्टॉक मार्केट है, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट? आप लोगों ने ओई सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या क्या सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट फैकल्टी फॉर ओई आएगा. इधर आपको ह्यूमैनिटी सेलेक्ट करना है, सब फैकल्टी सेलेक्ट करने बोलेगा आपको. आर्ट्स, व्हाट इज ओई? ओपन इलेक्टिव, मतलब कॉमर्स वाले कॉमर्स छोड़ के कुछ और पढ़ेंगे, तो ये आर्ट्स में आता है. आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप स्टॉक मार्केट का, तो आर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप सब फैकल्टी में. कोर्स के अंदर आप बीए सेलेक्ट करोगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्योंकि आप आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, राइट? तो वहां से, और आपका जो यहाँ पे ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये 4th या 3rd नंबर पे आता है, एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट. प्रैक्टिकल करके लिख के आएगा आपको OE 251, एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट. ये आपको प्रॉपरली देख के आपको सिलेक्ट करना है कोड OE 251 इकोनॉमिक्स का. ओके, ये आपको सिलेक्ट करना है. और इसके बाद में आपको नेक्स्ट आपको जाना है फी डिटेल्स पे. जब नेक्स्ट क्लिक करोगे आप, फाइनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपको फी डिटेल आएगा. ये आपका फी डिटेल आएगा 1015 आएगा अगर आपका बैकलॉग नहीं है. अगर आपका बैकलॉग्स है कुछ तो अकॉर्डिंगली अमाउंट बढ़ के आएगा जो भी है. ठीक है. नाउ आफ्टर यू डू दिस, नीचे फीस, ये फीस के नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है. ठीक है, इस बटन पे आप क्लिक करोगे प्रीव्यू पे, तो आपको ऐसे कुछ आपका फॉर्म दिखेगा. यहाँ पे आपका कैप नंबर, आपका नेम, मेरिट नंबर, और आपके सारे सब्जेक्ट जो नीचे दिखेंगे आपको. इसको पकड़ के स्क्रॉल करोगे आप तो आपको नीचे आपके सब्जेक्ट दिखेंगे. Once you are okay with that, click and submit the form.
तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स आपका कंप्लीट हो गया है और अनपेड है, अभी आपने फीस पे नहीं की है एग्जाम की। आपका प्रिंट प्रीव्यू पे आप जाओगे, क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, वो पीडीएफ आपको लेके कॉलेज आना है। ओके, और उसके बाद में आपको ये ऐसा ऐसा प्रीव्यू आएगा। ये प्रीव्यू को आपको लेके कॉलेज में आना है और आपके क्लास टीचर से इसको वेरीफाई करवाना है। क्या वेरीफाई करवाना है, क्या है, किससे करवाना है, वो सब आपको आगे मैं दिखाता हूँ। ये क्विकली आपको बताता हूँ स्टेप्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। क्या किया हमने? फिल एग्जाम फॉर्म, प्रीव्यू हमने ले लिया, प्रिंट आउट ले लिया। प्रिंट आउट लेके कॉलेज आ गए, हम क्लास टीचर से मिलेंगे, जो भी डेट शेड्यूल लगाया है। एस वाई बी कॉम के लिए 9th एंड 10th बोला गया है। 9 तारीख को और 10 तारीख को आपका फॉर्म वेरिफिकेशन होगा। तो आपको कॉलेज को आना है 9 तारीख को, 9 तारीख को ही आइए और आपका सब कुछ करके निकल जाइए यहां से। ओके, वंस यू फिनिश दैट वेरिफिकेशन बाय द टीचर, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा एग्जाम डिपार्टमेंट जाओगे, आप फॉर्म को इन्वर्ट कराओगे, प्रीव्यू फॉर्म को इन्वर्ट करवाओगे। ओके, वंस इट इज इन्वर्टेड, आप वापस एसपीपी की वेबसाइट पे जाओगे, जो वेबसाइट आपको दिया था ना मैंने, वहीं पे जाओगे और वहां पे आपको फीस पे करने का ऑप्शन, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको ये पे ऑनलाइन का लिंक एक्टिव नहीं है, लेकिन जब कॉलेज इन्वर्ट कर देगा उसको, पेंडिंग एट कॉलेज देखो लिख के आया है यहाँ पे, जैसे कॉलेज इन्वर्ट करेगा यहाँ पे स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा और ये पे ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो आप वहां पे फीस पे करोगे, फीस पे करके प्रिंट आउट लोगे, प्रिंट आउट के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप वापस एग्जाम डिपार्टमेंट जाओगे और आप वहां पे जाके अपना फॉर्म सबमिट करोगे। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल फॉर्म अलोंग विद द एग्जाम फीस पेड रिसीट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन आस्क्ड फॉर एंड सबमिट द सेम एट द एग्जाम डिपार्टमेंट। ओके, ये सारा ले जाकर आप वहां पे एग्जाम डिपार्टमेंट में सबमिट कर दोगे। दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस। प्लीज मेक श्योर कि आप एग्जाम फॉर्म जो है टाइम पे सबमिट करोगे। जिस टाइम आपको बोला गया है कॉलेज आने, एक दिन ही आना है और उसी दिन सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। 9 तारीख को आपने आना है और आपने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। आप ऑनलाइन तो भर के ऑलरेडी लेके आओगे, प्रिंट आउट लेके आना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके आना है। आई जस्ट शो यू द नोटिस, just give me a second, let me just take out the notice. So these are your class teachers, 9th एंड 10th को आपको आना है। आपको एस वाई बी कॉम के ए डिवीजन क्लास टीचर ज्योति मैडम है, ज्योति मैडम की साइन लगेगी आपको। बी का मैं खुद हूं, आप मेरे पास आएंगे। सी का मिस आसिया शेख है और डी का साक्षी मैडम है। आपको हमारी क्लास टीचर की आपकी साइन लेना है। अगर आप हार्ड कॉपी एग्जामिनेशन फॉर्म की सबमिट नहीं करते हो तो आपका एकेडमिक लॉस होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरे नहीं, भरने के बाद में पूरा प्रोसेस फॉलो करके फाइनल हार्ड कॉपी अलोंग विद फीस पेड रिसीट आपको एग्जाम डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। उसके साथ साथ आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है। एग्जाम मार्कशीट आपको सबमिट करनी है, एफआईएसवाई की, आईडी कार्ड होना चाहिए, आपको एडमिशन फीस की रिसीट देनी है, और एक ये फॉर्म है, इसको ये आपके क्लास में आएगा, इसको क्लिक करोगे आप तो ये वाला फॉर्म है। ये फॉर्म आपको फिल करके इसको भी सबमिट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। इसके क्लिक करके तो एक फॉर्म खुलेगा। आई विल शो यू द फॉर्म हाउ इट लुक्स लाइक। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ एक फॉर्म खुलेगा जिसका नाम है एग्जाम फॉर्म सबमिशन रिसीट मार्च 2026। ये 2 पार्ट्स में होता है, आपको दोनों पार्ट्स फिल करके एग्जाम फॉर्म को अटैच करके सबमिट करना है। इसके हाफ पार्ट को टेयर करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, स्टूडेंट कॉपी को, कि आपने ये सबमिट किया है, स्टूडेंट कॉपी ही है, ये आपको रिटर्न की जाएगी, और ये कॉलेज कॉपी कॉलेज के पास रहेगी। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस, जब तक कि आपको इसके ऊपर साइन स्टैम्प करके नहीं मिलता है, जब तक कि आपका एग्जाम फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। So please make sure you get the sign stamp on this and complete the entire exam form filling process, and make sure that you are through with the entire process. All right. With this, I'll be signing off. Any doubts and queries, feel free to write in the comments below. I will be more than happy to resolve your doubts and queries. Thank you so much. This is Dr. Fazil Sharif signing off.